Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you will be fine. Today we are going to start our lecture number 4 part 1 from unit number 6 work and energy. In this lecture we will discuss the following contents: efficiency, power, examples. Before explanation, I'm going to start reading from page number 163. Efficiency. A light bulb is designed to convert electric energy into light energy. A car engine is designed to convert chemical potential energy stored in the fuel into kinetic energy for the car. While the light bulb and the car engine are transforming some of potential energy into desired form of energy, part of its energy is lost. As you know, energy can neither be created nor destroyed. The lost energy is converted into form that do not serve the intended purpose. Often the lost energy is transformed into heat. The efficiency of machine or device describes the extent to which it converts input energy or work into the intended type of output energy or work. Efficiency is the ratio of useful energy or work output to the total energy or work input. Efficiency equals to useful output work divided by input work. Efficiency equals to W naught divided by Wi. Next, efficiency equals to useful energy output divided by energy input. Efficiency equals to E naught divided by EI. Efficiency is ratio of the same quantities and therefore units cancel. Therefore, efficiency has no unit. An incandescent light bulb is designed to provide light energy. Unfortunately, it is also produce a lot of thermal heat energy while in use. In fact, only about 5% of the electric energy delivered to the bulb transform to light energy. The rest become waste thermal energy. We said that the incandescent light bulb is only 5% efficient. A fluorescent lamp is about 20% efficient of converting electrical energy into light as shown in the figure 6.16. Efficiency expressed as a percentage is the ratio of the useful energy provided by a device to the energy required to operate the devices. The efficiency of an energy transformation is as percentage is calculated as efficiency equals to E naught divided by E multiply 100. It is not possible to have machine with 100% efficiency because friction lowers the efficiency of a machine. Work output is always less than work input, so an actual machine wasting input energy as heat which is not required cannot be 100% efficient. Typical efficiency of energy transformation technologies are shown in table. You can see devices और उनके efficiencies given है. Electric generator 98% efficient होता है. Hydroelectric power plant 95%. Large electric motor 95%. Home gas furnace 85%. Wind generator 55%. Fossil fuel power plant 40%. Okay, here I'm going to start. एफिशिएंसी, इसमें हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है और ये 100% कैसे होती है. तो सबसे पहले इसमें हम वर्क डन देखते हैं, ठीक है. जैसे हमारे पास है कोई भी मशीन जब काम करती है, ठीक है, तो वो कितने अच्छे तरीके से काम करती है, जो हमने उसको इनपुट दिया वो कितना अच्छा हमें आउटपुट देती है. तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है, एफिशिएंसी होती है कि जितना हमने इनपुट दी इतना अच्छा रिजल्ट आया. लेट्स दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. अब दोनों पे एक टीचर एक जैसे एफर्ट कर रहा है, लेकिन एक बच्चा जो है वो अच्छा रिजल्ट देता है, एक का नॉर्मल होता है. तो होता क्या है, वो जो अच्छा रिजल्ट देता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है. ये उसकी एफिशिएंसी है. यहाँ पे देखें डेफिनेशन, एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ यूजफुल एनर्जी आउटपुट टू द टोटल एनर्जी इनपुट. or efficiency is the ratio of useful work output to the total work input. यानी हम कितनी इनपुट देते हैं, ठीक है, कितनी एनर्जी देते हैं और आउटपुट में हमें कितनी एनर्जी मिलती है, या फिर हम कितना वर्क डन करते हैं तो आउटपुट में हमें कितना
वर्क डन मिलता है। गॉट इट? फॉर्मूला इसका क्या होता है? एफिशिएंसी इक्वल्स टू यूजफुल एनर्जी आउटपुट टू द एनर्जी इनपुट। एफिशिएंसी इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइडेड बाय ई नॉट। एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अभी एज आई मेंशन इन प्रीवियस के यूजफुल आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क, कितना हमने आउटपुट इनपुट दिया और हमें कितना आउटपुट मिला। लेट्स अपेयर हमारे पास पेयर ऑफ स्पीकर्स यूज 50% ऑफ एनर्जी दैट कंज्यूम टू जनरेट साउंड। ठीक है, सम एनर्जी क्या होती है वो वेस्ट हो जाती है, सम हमें एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस होती है। तो जो हमें एज अ रिजल्ट मिलती है वो उसकी एफिशिएंसी होती है। जैसे अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है, तो वो क्या करता है? डायरेक्ट अबाउट 60% ऑफ इट्स एनर्जी कंजप्शन टू इट्स व्हील। तो उस व्हीकल की कितनी 60% एनर्जी जो होती है वो यूज होती है, वेस्ट हो जाती है उसकी फ्रिक्शन में, उसकी व्हील की जो फ्रिक्शन होती है। अभी इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल लें, एक प्रोमर है, कोई भी है, ठीक है, वर्कर है, वो 100 लाइन्स ऑफ कोड 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखता है, ठीक है, एक दिन में। ठीक है, अब इसी तरह वो बंदा जो है वो घर में है, घर में एक दिन में वो 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखता है। अब वो घर में है, घर में जब वो काम करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखता है, बिकॉज शी कंज्यूमिंग देयर टाइम वॉचिंग मूवीज, डूइंग सम एक्स्ट्रा वर्क। ठीक है, तो अब वही बंदा जब ऑफिस में जाता है, यहाँ पे वो कितने 10% काम करता है, लेकिन जब यही बंदा ऑफिस में जाता है तो उसका डूइंग वर्क जो है वो ड्रॉप हो जाता है। बिकॉज क्यों? वो मीटिंग्स में, ठीक है, को वर्कर्स के साथ बातें वगैरह करने में, इसी तरह वहाँ पे उसका वर्क जो है वो 7% ड्रॉप हो जाता है। तो जहाँ वो क्या होगी, उसकी 7% उसकी एफिशिएंसी होगी कि उसने कितनी एफर्ट की और उसको कितना आउटपुट रिजल्ट मिला। जितनी हमारी इनपुट अच्छी होगी उतना ही हमें आउटपुट अच्छा मिलेगा। गॉट इट? लेट्स स्टैंडर्ड इनकैंडेसेंट बल्ब। ठीक है, अब हमारे पास यू कैन सी हेयर सम एनर्जी जो है वो लाइट में ट्रांसफर होती है, सम एनर्जी हीट में ट्रांसफर होती है। अब होता क्या है? 2% ऑफ इट्स एनर्जी कंजप्शन टू लाइट एंड 98% टू हीट। जो हमारे पास बल्ब होते थे, ठीक है, 100 वॉट के, आप लोगों ने घरों में देखा भी होगा, तो उसमें क्या होता है? 98% जो होती है वो हीट में ट्रांसफर होती है और 2% उसकी क्या होता है? वो लाइट में ट्रांसमिट होती है जब वो गर्म होता है। ठीक है, तो वो उसमें एक्चुअली क्या होता है? वो हीट ट्रांसफर हो रही होती है। इसी तरह अनदर साइड यू कैन सी एक फ्लोरेसेंट बल्ब हीट, ठीक है, उसमें ज्यादा ही लाइट में ट्रांसफर होती है एनर्जी और कम उसकी हीट में ट्रांसफर होती है। तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, इसकी एफिशिएंसी कम होगी, यानी इनकैंडेसेंट बल्ब हमारे पास लेस एफिशिएंट होगा कंपेयर टू फ्लोरेसेंट बल्ब। जो आपके घरों में ट्यूब लाइट्स होती हैं, ठीक है, आप देखते हैं उससे हीट कम प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो आपके पास वो येलो टाइप के जो बल्ब होते थे, ठीक है, 100 वॉट के, उनमें हीट ज्यादा होती है, लाइट उनकी कम होती है। तो बेसिकली ये क्या है? ये एफिशिएंसी है किसी भी डिवाइस की। ठीक है, जैसे अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो एसी होता है, ठीक है, अगर बहुत हॉट क्लाइमेट है तो वो एसी एफिशिएंटली वर्क नहीं करता। ठीक है, तो वो उसकी क्या होती है? जो हमें आउटपुट गुड नहीं देता। ठीक है, जितनी हमने इनपुट दी उतना ही आउटपुट नहीं मिला, या उस एफिशिएंसी, ये याद रखें, एफिशिएंसी जो होती है, या हम अगर इनपुट की बात करें, जितना हम इनपुट देते हैं उससे कम ही हमें आउटपुट मिलता है। कभी ऐसा नहीं होता कि हमें उतना ही आउटपुट मिले, या कभी ये नहीं होता कि उससे ज़्यादा आउटपुट मिले, क्योंकि बेसिकली यही होता है कि सम एनर्जी क्या होती है? लॉस्ट हो जाती है ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन या व्हाटएवर। ठीक है, व्हेन वी एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस वी हैव सीन दैट सम एनर्जी इज लॉस्ट टू वेस्टेड एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, हमारे पास बेसिकली होता क्या है? टोटल जो एनर्जी होती है उसमें
यूजफुल एनर्जी इनपुट भी होता है प्लस वेस्टेड एनर्जी आउटपुट होता है। ठीक है, अब हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी कैसे आएगी? ठीक है, अगर हमारे पास यूजफुल आउटपुट एनर्जी क्या होगा, हमारे पास यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिक्रीज करेगी तो हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी, यानी जितना अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा वो उस डिवाइस की की एफिशिएंसी इतनी ही ज़्यादा होगी। लेट्स यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल, ठीक है, होपफुली इट इज़ क्लियर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी 100% कैसे हो सकती है। ठीक है, तो एफिशिएंसी 100% तभी होगी जब हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें इसको हम क्या करते हैं, परसेंटेज में हम इसको एफिशिएंसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स आपके पास जो आउटपुट एनर्जी रेशियो टू द इनपुट एनर्जी जो हमारे पास रिजल्ट आया है, जब हम उसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ये हमारे पास परसेंटेज में आ जाती है। ठीक है, होपफुली इट इज क्लियर्ड। ओके, अब नेक्स्ट इस लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट जो है वो दूसरी वीडियो में गिवन है।